according to this. ध्यान से सुनिए, Hear carefully. कोई अच्छा मसीह और कोई बुरा मसीह नहीं है। There is no good believer and bad believer. फिर से मैं बोल रहा हूँ, I'll say it again. अच्छा मसीह और बुरा मसीह नहीं है। There is nothing like a good believer or a क्योंकि bad एक बार believer. जब आपने मसीह में आ गए, आप उसके लहू से धुले गए, आप उसकी धार्मिकता बन गए, आप पवित्र लोग हो चुके हो। Because when you are in Christ, you are washed with His blood. You are holy. सो अब कोई अच्छा मसीह और बुरा मसीह नहीं है। So there is no good or bad believer anymore. अब यह है कि खेत जिसमें बीज पड़े हैं और कुछ खेत ऐसे हैं जिसमें बीज नहीं पड़े। Now the matter is a field which is filled with seed and a field which has no seed. यानी अब आपका हार्वेस्ट परमेश्वर नहीं डिसाइड करता, आप डिसाइड करते। Which means God does not determine your harvest, you do it. चलिए वचन में चलते हैं। Let's go into the word. पहला कुरिन्थियों 3:9, 1 Corinthians 3:9. यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। It says here, for we are God's fellow workers. कौन है हम लोग? Who are we? God's fellow workers. हम परमेश्वर के क्या हैं? सहकर्मी हैं, यानी उसके साथ काम करने वाले हैं। We are God's fellow workers. It means we work together with Him. If we are God's fellow workers, then we have to know how God works. अगर हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं तो हमें समझना है परमेश्वर कैसे काम करता है। We have to learn how does the kingdom of God operate. हमें सीखना है परमेश्वर का राज्य कैसे काम करता है। Amen. Amen. क्योंकि हम क्या हैं परमेश्वर के? Who are we? सहकर्मी, colleagues. The fellow workers, the colleagues of God. Isn't that amazing? कि वो चाहता है कि हम उसके साथ मिलकर कार्य करें। हम सहकर्मी हैं परमेश्वर के। He wants that we work with Him. We are co-workers with आगे देखिए क्या लिखा है, तुम परमेश्वर के खेत हो। Him. You are God's field. तुम परमेश्वर के क्या हो? तो एक काम देखते हैं, ये दो खेत हैं यहाँ पे, ठीक है? So there are two fields here. Let's see that. ये दो खेत हैं There are two fields here. और एक भरा हुआ है फसल से। And one of the fields is filled with crops. और एक में थोड़े थोड़ा And the other has sprinkles of crops. आप क्या हो परमेश्वर के? Who are you? खेत। The field of God. एक भरा हुआ है, फसल लहलहा रही है, One is filled with crop, with harvest, और एक में कुछ भी नहीं है। and the other has barely anything. इस खेत में किस चीज की कमी है? What does that field lack? हाँ, सीड। किसकी कमी है? सीड, यानी बीज, यस, बीज। It lacks seed. बीज की कमी है। It lacks seed. जब आप अलग अलग मसीहों को देखते हो, When you see different believers, किसी के जीवन में आप बहुत ज्यादा फल देखते हो, in one believer's life you see many किसी के fruits. जीवन में आप कुछ फल नहीं देखते। In one's life you barely find सो anything. मसीह लोग क्या सोचते हैं? वो परमेश्वर है जिसने उसके साथ किया और मेरे साथ नहीं किया। So what believers think is God has done plentiful with him but not with me. वो सोचते हैं कि अगर किसी के जीवन में बहुत फल है, वो परमेश्वर ने कर दिया और हमारे जीवन में उसने नहीं किया। They think if somebody has so much fruit in their life, it is because God has done it for them and but not for me. परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। God does not differentiate. वो प्रेम करने वाला परमेश्वर He है। is a loving God. आमेन। यहाँ पे जो खेत में कमी है वो है What does this field lack? बीज। और Seed. मरकुस की पुस्तक, मरकुस की चौथी पुस्तक में लिखा है कि बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। In Mark 4, the word of God says, what is that seed? It is the word of God. यानी क्या डिफरेंस है दो मसीहों के अंदर? So what is the difference between two believers? आमेन। आप परमेश्वर का क्या हो? खेत हो। You are God's field. जब एक किसान खेत लेता है, क्यों लेता है खेत? When a man buys a field, why does he buy it? क्या चाहता है वो खेत से? What does a man want from his field? हाँ, फसल चाहता है। He wants a harvest. परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? What does God want from you? फसल चाहता है। He wants a harvest. परमेश्वर फल चाहता है। God wants fruit in your life. यीशु मसीह ने कहा, इससे पिता की महिमा होती है कि तुम बहुत सारा फल फलो। Jesus said, by this the Father is glorified that you bear many fruits. यानी जब आप एक ब्लेस्ड जीवन जीते हो, So that means when you live a blessed life, यानी जब आप स्वास्थ्य में चलते when हो, you live in health, यानी जब आप धार्मिकता में बढ़ते जाते when हो, you keep growing in righteousness, क्या होता है? what happens? इससे पिता की महिमा होती है। The Father is glorified.
जब लोग आपके जीवन को देखते हैं when people see your life, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, वो तुम्हारे जीवन को देखें और परमेश्वर पिता को क्या करें, Jesus महिमा said, let them see your life and glorify your Father in heaven. दें। Amen? Amen. So अगर मैं चाहता हूं, एक जो किसान है वो एक खेत में एक बारी बीज नहीं बोता, So a farmer does not sow the seeds in his field just one time. बार बार बीज बोता रहता है और कटनी करता रहता है, बीज Again- बोता रहता है और कटनी करता रहता है। यही मसीह जीवन भी है, बीज बो कटनी करो, बीज बो कटनी करो। Again and again, the farmer sows the seed and he reaps a harvest. He sows the seed, reaps a harvest. This is what the Christian life is. Sow the seeds in your heart and reap the harvest. परमेश्वर ने आपको अपना वचन दिया है जो उसका अविनाशी बीज है। बाइबल God has given you His word, which is His indestructible seed. अविनाशी बीज का मतलब वो कभी करप्ट नहीं हो सकता। Incorruptible seed, which can never be corrupted. अगर आप सच में एक कमिटमेंट के साथ परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोते हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जीवन ब्लेस्ड ना हो। If you intently sow the word into your heart, this is not possible that you will not live a blessed life. आमीन। वचन कुंजी है, The word is the key. वचन हमारे जीवन का आधार है। The word is the basis for our life. आमीन। हमारा नया जन्म भी परमेश्वर के वचन से ही हुआ है। Our new birth is according to God's word. आमीन। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हम जब इस दुनिया में आए हैं, When we have come to this world, परमेश्वर का वचन पहला थेसलोनियंस 5:23 में हमें बताता है कि हम क्या है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, तो हम क्या हैं? हम एक आत्मा है। 1 Thessalonians 5:23, God has made us in His image according to His likeness. So हमारे first, पास प्राण है we are a spirit, we have a soul, और हम एक शरीर में रहते हैं। and we live inside a body. बोलिए, मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूं। Say, I am a spirit, I have a soul, and I live in a body. ये जो आप देख रहे हो ये आप नहीं हो, What you see, this is not you. आप एक आत्मा हो। You are a spirit. आमीन। Amen. सो बाइबल क्लियरली डिफरेंशिएट करती है इन तीन चीजों के बारे में। So Bible clearly differentiates between these three things. सो जब एक बच्चा पैदा होता है When a child is born, तो सबसे पहले क्या सीखता है वो? what does he learn first? वो सीखता है अपनी बॉडी को कैसे, वो फिजिकल ट्रेनिंग करता है, He learns to physically train his body. जो हम कहते हैं मोटर स्किल्स। एक बच्चा जब पैदा होता है अपने हाथ हिला के देखता है, कुछ चीज़ पकड़ने की कोशिश करता है, अपने मुंह में डालता है सारी चीज़ें। Yeah, we call it motor skills. The child learns to use his fingers, tries to taste everything. वो क्या कर रहा है? वो फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा है, अब सीख रहा है, ट्रेनिंग के द्वारा जा रहा है कि इस शरीर को मैं कैसे इस्तेमाल करूं। The child is physically training his body, so how he can use the body. आमीन। और बच्चा बढ़ता जाता है, हल्के हल्के उसकी स्किल्स बढ़ती जाती है, मोटर स्किल्स बढ़ने लग जाती है, देखने की शक्ति, सुनने की, जो सारे 5 सेंसेस हैं बॉडी में, वो एक बच्चा यूज करना सीख जाता है। And the child becomes more and more proficient how to use these 5 senses, how to use his body. आमीन। Amen. फिर क्या होता है जब आपका बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल, माता पिता पे डिपेंड करता है, फिर आप क्या करते हो? उसको स्कूल में डालते हो कि ताकि वो क्या सीख जाता है, फिर वो आप उसको स्कूल में डालते हो कि वो इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग या मेंटल ट्रेनिंग में आप उसे डालते हो। When the child turns 2, 3 or 4, the parents send them to school so they can be trained intellectually, कि वो बुद्धि और ज्ञान में बढ़ सके। so they can grow in wisdom and understanding. आमीन। मुश्किल तो नहीं है, It's not difficult, right? सब भेजते हैं अपने बच्चों को स्कूल में। Everyone sends their children to school. Why? Because we want them to exercise their mental faculty. क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बुद्धि में बढ़ें. लैंग्वेज सीखे, They learn केमिस्ट्री languages. सीखे, They मैथ learn- सीखे, साइंस सीखे, They learn different subjects, जो yeah, मेंटल फैकल्टी है वो डेवलप हो। which will help develop their mental faculty. आमीन। होता क्या है, मोस्ट लोगों के केस में वो हमेशा इन 2 चीज़ों को डेवलप करते हैं और कभी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के थ्रू नहीं जाते। So what happens to most people is they train these 2 things, but they never go through spiritual training. एक आत्मिक प्रशिक्षण भी है। There is also a spiritual training. आमीन। और बहुत सारे लोग मर जाते हैं बिना जाने हुए कि उनकी आत्मा कैसे कार्यशील होती है। And many people die without ever learning how their spirit works. जो मसीह में नहीं आया, जो बॉर्न अगेन नहीं है, वो स्पिरिचुअली डेड है, उसकी आत्मा मरी हुई है। Those who have not been born again, have not accepted Jesus, their spirit is dead. मगर जिन्होंने नया जन्म पाया है, But
अब हमें सीखना है कि हमें परमेश्वर के साथ कैसे मिलकर कार्य करना है। But those who have been born again, we need to learn how to work together with God. मैं पहला तिमोथी 4:8 पढ़ता हूँ। 1 Timothy 4:8. क्योंकि देह के प्रशिक्षण से कम लाभ होता है। For physical training is of some value. एम्पलीफाइड में देखिए कितना अच्छा लिखा है, फिजिकल ट्रेनिंग इज ऑफ सम वैल्यू। शारीरिक प्रशिक्षण का थोड़ा लाभ है। जो फिजिकली ट्रेनिंग करते हैं, बाइबल नहीं कह रही कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सम वैल्यू, थोड़ी वैल्यू है। The Bible is not saying that those who train physically have no value. It has some value. बट गॉडलीनेस जो है स्पिरिचुअल ट्रेनिंग लेकिन ईश्वरीय ट्रेनिंग, godliness, इज यूजफुल एंड वैल्यू इन एवरीथिंग। वो हर एक बात में, सब बातों में लाभदायक है। आप समझ रहे हैं? You understand? आपकी जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है, Your spiritual training, ये बहुत ही पावरफुल है। अगर आप स्पिरिचुअल ट्रेनिंग को एनरोल करते हैं, ये केवल आपका आज इंपैक्ट नहीं करेगी, बाइबल बताती है आपके आने वाला कल को भी इंपैक्ट करेगी। your spiritual training not only impacts your today but also the days to come. आमेन। क्योंकि इस बात को जानिए, जॉन 4:24 कहता है कि गॉड इज अ स्पिरिट। यूहन्ना 4:24 वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है। क्या है परमेश्वर? परमेश्वर आत्मा है। God is इसीलिए परमेश्वर केवल आपकी आत्मा से ही बात करता है। This is why God only speaks to your spirit. परमेश्वर आपके शरीर से बात नहीं करता। God does not talk to your body. परमेश्वर आपके सोल से बात नहीं करता। God does not talk to your soul. परमेश्वर आपकी आत्मा से बात करता God है। speaks to your spirit. बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ हिंदी में क्या लिखा है? हाँ? नहीं नो। होली स्पिरिट बेयर्स विटनेस विद द स्पिरिट, जो बाइबल में कहती है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में गवाही देता है। गवाही देता है। सो पवित्र आत्मा कहाँ बात करता है, कहाँ गवाही देता है? Where does Holy Spirit bear witness? कितने लोगों को पता है आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं? हाथ उठाओ। How many people know you are children of God? You are sons कितने and लोगों daughters को of God? पता है? How many of you know this? अगर मैं कहूँ आप नहीं हो, If I say you're not God's अगर child, कोई आपको बोले एविडेंस दिखाओ, if someone asks you for an evidence, क्या शारीरिक एविडेंस do है? you have any physical proof? नो। No. क्या सोल में एविडेंस है? Do कोई you have a फीलिंग है? proof in कोई your soul? Any नहीं। feeling? No. मगर आत्मा में आपको 100% एविडेंस है कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। But in your spirit, you have 100% evidence that you are God's child. क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहाँ गवाही दी? Where did the Holy Spirit give you आपकी evidence? आत्मा में। In your spirit. आमेन। इसीलिए हमें आत्मा के चलाए चलना सीखना है। This is why we have to learn to walk according to the Spirit.